Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Miss Sana Javed. Hope you all are fine. Student, as you all know, we are living in very crucial situation nowadays. It is mandatory to take safety measurements, so this is the best possible option to give you all recorded lectures. So now it is necessary for all of us to show a complete teamwork. So please listen my lectures carefully, and if you have any query or difficulty, do consult me. I definitely going to help out you guys. Our syllabus outline for first term for class 9th includes 3 chapters: Introduction to Physics, Measurement, and Kinematics of Linear Motion. The topics we cover in our first chapter, that is Introduction to Physics, are what is physics, branches of physics, importance of physics in our daily life, and contribution of Muslims and Pakistani scientists. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. So here we start our first chapter, that is Introduction to Physics. To understand physics, first of all we have to know the origin of physics. फिज़िक्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसका origin मालूम हो कि वो दुनिया में कब और कैसे introduce हुई. Do you know guys, until 18th century, science was known as natural philosophy. Gradually, with the passage of time, it was replaced by science and further divided into two basic disciplines. As you know, science is the knowledge gained through observation and experimentations. So science is divided into two basic disciplines, as you see in a slide: physical sciences and biological sciences. Physical sciences means to study about non-living things, and biological sciences means to study about living things. फ़िज़िकल साइंसेस में हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, उनके मोशन को, उस पर फोर्स कैसे लग रही है, हीट कैसे जनरेट हो रही है, एनर्जी कैसे यूटिलाइज़ हो रही है, एटम्स को देखते हैं, मॉलिक्यूल्स को देखते हैं. ये सब हम नॉन लिविंग थिंग में इसको कवर करते हैं और इन सब को हम लोग फ़िज़िकल साइंसेस में स्टडी करते हैं. ऑन अदर हैंड, बायोलॉजिकल साइंसेस में हम लिविंग थिंग्स को या लिविंग सिस्टम्स को हम स्टडी करते हैं, लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इकोलॉजी, एनाटमी वगैरह एक्सेट्रा. नाउ बाय द पैसेज ऑफ टाइम, physical sciences is further divided into some branches like physics, chemistry, astrology, etc. And biological sciences also divided into some branches like microbiology, zoology, botany, anatomy, etc. So through physical sciences, physics comes. फ़िज़िकल साइंसेस के ज़रिए हमें फ़िज़िक्स मिली और उससे आगे फिर हमने फ़िज़िक्स में मज़ीद रिसर्चेस करी. चलें जी, यहाँ से आ गए अब हम अपनी फ़िज़िक्स पर. मतलब हमने क्या डिस्कस करा कि 18th सेंचुरी में साइंस नाम का कोई लफ्ज़ नहीं होता था, नेचुरल फ़िलासफ़ी होती थी. लोग सोचते थे और गौर फ़िक्र करते थे. आफ्टर 18th सेंचुरी लोगों ने ऑब्ज़र्व तो वो पहले ही कर रहे थे, ऑब्ज़र्वेशंस थी, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशंस करने शुरू कर दिए, एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए और ये लफ्ज़ रिप्लेस हो गया साइंस से. मज़ीद जब लोगों ने इस पे मज़ीद ऑब्ज़र्वेशंस रखी अपनी और एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए अपने रिज़ल्ट्स लाए, तो इन्होंने इसको मज़ीद डिवाइड करा टू ब्रांचेस में, टू डिसिप्लिन्स में: फ़िज़िकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, जिसमें हमारी फ़िज़िक्स लाई करती है फ़िज़िकल साइंसेस में. तो ये छोटा सा मैंने आपको समराइज़ करके बताया है कि एक प्रीव्यू दिया है कि आपके दिमाग में रहे कि फ़िज़िक्स आया कहाँ से. सो हेयर वी स्टार्ट आवर फ़िज़िक्स नाउ. सो व्हाट इज़ फ़िज़िक्स? Word physics come from a Greek word physikos, which means natural. By definition, it is a branch of science which deals with the study of properties of matter, energy, and interaction between them.
यानी इसके अंदर हम जितना भी मैटर एग्जिस्ट करता है, मैटर को स्टडी करते हैं और एनर्जी को स्टडी करते हैं और फिर इनका इंटरेक्शन देखते हैं आपस में। When we talk about matter, we means everything which occupy space and have weight. थोड़ी सी एग्जांपल्स ले लेते हैं मैटर की। इस तरीके से तो डेफिनेशन के लिहाज से तो हर चीज़ ही मैटर है। मीन्स एज अ कंपोजिशन ह्यूमन बॉडी मैटर है। इसी तरीके से अर्थ भी मैटर है। अर्थ अपने अंदर कंटेन करती है कॉपर, आयरन, बहुत सारी चीज़ें, ये भी मैटर हैं। सन भी एक मैटर है, हमारी अर्थ भी एक मैटर है। दूसरी तरफ एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। एज वी नो, एज यू स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस के हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, चार्जेस कंटेनिंग एनर्जी। तो इन सबको स्टडी करना फ़िज़िक्स के अंदर कवर होता है। अब आते हैं इंटरेक्शन की तरफ कि ये इंटरेक्शन क्या है। मैटर एंड एनर्जी दोनों इंटरकन्वर्टेबल हैं। यानी एग्जांपल लेते हैं, बल्ब इज़ अ मैटर। सपोज बल्ब इज़ अ मैटर एंड वी प्रोवाइड इट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो बाय देयर इंटरेक्शन लाइट एनर्जी इज़ प्रोड्यूस। यानी आपने बल्ब लिया एज अ मैटर और आपने उसे एनर्जी दी। कौन सी एनर्जी दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी आपने उसे, यानी चार्जेस की एनर्जी दी, तो वो ग्लो कर गया। इन दो के कॉम्बिनेशन से, यानी इन दोनों के इंटरेक्शन से वो ग्लो कर गया, तो ये उनका इंटरेक्शन हो गया। तो इस तरह की चीज़ें, यानी कि हम मैटर को पहले स्टडी करते हैं, फिर हम एनर्जी को स्टडी करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इनके इंटरेक्शन से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम फिज़िक्स में कवर करते हैं। सेकंड एग्जांपल ले लें आप। फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लिया। कैसे किया? वाटर को एज अ मैटर यूज़ किया हमने। वाटर में एनर्जी है, उसको एक प्रेशर के साथ जब हमने टरबाइन्स पे डाला, मतलब ये एक बहुत बड़ा फंक्शन है कि टरबाइन के अंदर मैग्नेटिक्स लगे होते हैं, वो मूव करते हैं। फिर टरबाइन पे जब वाटर का प्रेशर आता है, बहुत एनर्जी आती है, तो वो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन फ़िज़िक्स को पे ही ऑब्ज़र्व करके और फिर एक्सपेरिमेंट करके इंसान ने बहुत सारी चीज़ें डेवलप करी, लाइक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करी, लाइक गैजेट्स डेवलप करे, आपके हॉस्पिटल में लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारी फ़िज़िक्स की ही ब्लेसिंग है। तो इन अ समराइज़ अगर हम बात करें तो फ़िज़िक्स क्या है, इसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, मैटर क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और फिर हम एनर्जी को देखते हैं कि एनर्जी क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कैसे हम उनको इंटरेक्ट करा के अपने काम की चीज़ें बना सकते हैं। तो अगर आप इस छोटी सी बात को दिमाग में रखेंगे कि दुनिया में मैटर है, एनर्जी है, और हम इनको स्टडी कर रहे हैं, अगर अलग अलग या इनको कंबाइन कर दें, इनका इंटरेक्शन करवा दें, तो ये फ़िज़िक्स की डेफिनेशन बन जाएगी। टोटल 3 चीज़ें। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी मूव ऑन आवर सेकंड टॉपिक, दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। Again, physics branched into two basic disciplines, classical physics and modern physics. Classical physics refers to the traditional forces that were recognized and developed before the beginning of 20th century. And modern physics refers to the concepts in physics that have surfaced since the beginning of the 20th century. क्लासिकल फ़िज़िक्स को आप यूँ समझ लें कि बिफ़ोर 20th सेंचुरी देखा गया कि चीज़ें कैसे मोशन में हैं, फोर्स लगकर हैं, विदाउट फोर्स हैं। चार्जेस को देखा गया, आइदर वो रेस्ट में थे और चार्ज थे। उसके अलावा मैग्नेटिज़म और इलेक्ट्रो को, यानी इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंबाइन करके देखा गया। तो ये सारा काम जो हुआ 20th सेंचुरी से पहले, तो ये सारा क्लासिकल फ़िज़िक्स कहलाता है। और इसमें मेनली काम जिन्होंने किया वो न्यूटन हैं, गैलीलियो हैं, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन ये क्लासिकल फ़िज़िक्स में आते हैं। एंड मॉडर्न फ़िज़िक्स जो आपकी है वो 20th सेंचुरी के बाद जितनी भी रिसर्चेज़ हुई हैं, ऑब्ज़र्वेशंस रखी गई हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस हुए हैं, रिज़ल्ट्स निकले हैं, वो मॉडर्न फ़िज़िक्स कहलाते हैं।
मॉडर्न फ़िज़िक्स की ही वजह से हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को स्टडी करना शुरू किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को। उससे हमने बहुत सारी इन्वेंशंस करी, हमने बॉम्ब्स बनाए, हम न्यूक्लियर की तरफ आए, हमने एस्ट्रोनॉमी की तरफ अपने कदम बढ़ाए। तो ये सारा मॉडर्न फ़िज़िक्स में आता है। The branches of physics which comes in classical physics are mechanics, electricity and electromagnetism. Branches which comes in modern physics are solid state physics, atomic physics, nuclear physics, biophysics, plasma physics and astrophysics. Let us discuss our first branch, that is mechanics. Mechanics deals with the motion of object with or without reference of force. For example, kinematic, acceleration, etc. मैकेनिक्स में हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हरकत में हैं, मींस मोशन में हैं। हम देखते हैं, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, इन दिस वी स्टडी द कॉज ऑफ मोशन, इफ़ेक्ट्स ऑफ मोशन एंड हाउ दे कम इन मोशन। नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ योर अ लिटिल असाइनमेंट कि आप सोचें और फिर मुझे मैसेज के थ्रू बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में जो कि इस वक्त मोशन में हैं और उन पे फोर्स लग रही है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इस वक्त दुनिया में जो कि मोशन में हैं विदाउट फोर्स। नाउ वी मूव ऑन आवर सेकंड ब्रांच, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. Electricity concerned with the phenomena and effects related to electric charges. For example, Ohm's law, Coulomb's law, Joule's law, etc. By the way, Ohm's, Coulomb's and Joule's, they are scientists. मेनली इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप ये स्टडी करते हैं कि चार्जेस कैसे ट्रैवल करते हैं, बॉडी चार्ज है, डिस्चार्ज है, या बॉडी चार्ज कैसे होगी, डिस्चार्ज कैसे होगी। तो चार्जेस को स्टडी करना इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच के अंदर आता है। एग्जांपल्स दिए आपको मैंने इलेक्ट्रिसिटी की, ओम्स लॉ, कूलम्स लॉ, जूल्स लॉ, और मैंने आपको बताया है कि ये साइंटिस्ट थे। तो ये एग्जांपल्स में कैसे आए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, जब आप इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये हमें तीनों साइंटिस्ट मिलेंगे। ओम्स लॉ ने हमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप निकाल के दिखाया, उसके बारे में बताया। कूलम जो थे उन्होंने हमें चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी, उसका फार्मूला हमें ड्राइव करके बताया। और जो जूल्स थे उन्होंने वर्क डन का फार्मूला कैलकुलेट करके बताया। तो ये इसलिए इसकी एग्जांपल में आ रही हैं, तो इनको डिटेल में हम जब इंशाल्लाह चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इनको स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म deals with the observations, principles, laws and methods that relate electricity and magnetism. For example, electric motor, electric bell, MRI machine in hospitals, etc. इस ब्रांच में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम मैग्नेट में इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद, यानी इंड्यूस करवाने के बाद इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं या मशीन्स बना सकते हैं। लाइक इलेक्ट्रिक मोटर इसी प्रिंसिपल पे काम करती है कि उसमें मैग्नेट यूज़ हो रहे होते हैं और साथ में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही होती है और वो फंक्शन करती है। इसी तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक बेल काम करती है, मैग्नेट होता है उसमें, कॉम्बिनेशन उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी का होता है और वो आपको साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करके दिखाती है। और इसी तरीके से MRI मशीन यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में भी यही प्रिंसिपल यूज़ होता है कि हम मैग्नेट को और इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करवा के आपस में, मींस अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इनको कंबाइन करवा के हम इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं जो हमारे ही काफ़ी फ़ायदे के हैं और उनसे फिर हम बहुत सारे काम ले सकते हैं। Solid state physics concerned with the structure and properties of solid materials. For examples, मेटल एंड नॉन मेटल्स, मीन्स सॉलिड मटेरियल का यहाँ पे मतलब है मेटल्स और नॉन मेटल्स। इस ब्रांच में हम मेटल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। नॉन मेटल्स को भी स्टडी करते हैं, उनकी हम जो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं उनका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। ये भी मेडिकल में भी यूज़ होता है और भी बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने मेटल को स्टडी करा तो उस मेटल को फिर हम ह्यूमन बॉडी में लाइक अगर ह्यूमन बॉडी
में हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हम कोई मेटल को इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर उसकी कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो हमें मेटल को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है बॉडी में। तो हम इस ब्रांच के अंदर मेटल्स को स्टडी करते हैं, नॉन मेटल्स को स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं कि हम उन्हें कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो फ़िज़िक्स की ब्रांच है कि जिसके अंदर वी स्टडी द प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ वी मूव ऑन आवर फिफ्थ ब्रांच, दैट इज़ एटॉमिक फ़िज़िक्स। Atomic physics concerned with the structure and properties of an atom. For example, uranium, radium, krypton, etc. Atomic physics में हम उन एलिमेंट को स्टडी करते हैं जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है और वो अपने अंदर से रेडिएशन को इमिट करते हैं। तो हम इन एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूरेनियम इसमें बेस्ट है, रेडियम है, क्रिप्टॉन है, सीजियम है। तो इनको स्टडी, इनके एटम को हम स्टडी करते हैं और एटम की प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर को स्टडी करके, और फिर हम इस पर रिसर्च करते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ हम इनको यूज़ कर सकते हैं, किन फील्ड्स में हम इनको यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट ब्रांच, दैट इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स। Nuclear physics भी concerned with the structure, properties and reaction of the nuclei of an atom. इसकी एग्ज़ाम्पल हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फिजन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस ब्रांच में न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम न्यूक्लियाई ऑफ एटम को के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ और फिर उनके रिएक्शन को स्टडी करते हैं। और एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस। फिजन रिएक्शन मीन्स atomic bomb and fusion reaction means hydrogen bomb। तो हम इस ब्रांच के थ्रू उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनके स्ट्रक्चर को और फिर उनमें रिएक्शन कैसे होगा, कैसे होता है, कॉजेस, इफ़ेक्ट्स, ये सब स्टडी करते हैं। तो ये ब्रांच हमारी न्यूक्लियर फिज़िक्स कहलाती है। बेसिकली एटॉमिक फ़िज़िक्स और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स कॉम्बिनेशन में है। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम एलिमेंट को स्टडी करते हैं और न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम वो एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं। तो मतलब एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम उसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी को बहुत डिटेल में देखते हैं और न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम वो एलिमेंट यूज़ करके उसको रिएक्ट करवा देते हैं। तो जब हम उसको रिएक्ट कराते हैं तो थ्रू एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब, तो ये न्यूक्लियर फिज़िक्स फिर कहलाता है और इस फील्ड के अंदर आता है। नाउ वी मूव ऑन our seventh branch, that is biophysics. Biophysics concerned with the application of physical methods and explanation to biophysical system and structures. For example, formation of ions, covalent bond, etc. यूँ समझ लें आप कि बायोफिज़िक्स जो है वो मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनिंग की स्टडी के लिए यूज़ होती है। कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनिंग मींस सिटी स्कैन। तो सिटी स्कैन की स्टडी के लिए की स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं वो बायोफिज़िक्स है। इसमें हम आयन की फॉर्मेशन देखते हैं, चेक करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग चेक करते हैं एंड सो ऑन। नाउ वी मूव ऑन आवर एट्थ ब्रांच, दैट इज़ प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फिज़िक्स कंसर्न with the properties of highly ionized atom forming a mixture of bare nuclei and electrons. For example, alpha rays, beta rays and gamma rays. Basically, plasma physics is a ionic state of matter. Means आयन की स्टेट में जो हमारे पास मैटर होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को प्लाज्मा में डिस्कस करना प्लाज्मा फ़िज़िक्स कहलाता है। ये हम रेस की हेल्प से करते हैं। और रदरफोर्ड थे जिन्होंने हमें रेस के नाम बताए अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के नाम से मशहूर है। उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उन्होंने हमें बताया कि एलिमेंट से जो रेज़ निकलती हैं वो 3 तरह की हैं और उन्होंने ही उनके नाम रखे अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो इन सिंपल वर्ड्स, in plasma physics we discuss the properties of ionized atoms. Now we move on our last branch, that is astrophysics. Astrophysics concern
with the study of the physics of astronomical bodies. For example, stars, moon, sun, etc. Now students, we have take a short review what we have done. First of all, we discussed the origin of physics. Then we discussed what is physics. Then main disciplines of physics. And finally, we discussed the branches of physics. Dear students, life is full of options, but in physics assignments, you don't have any option. You have to attempt all the questions which are given you as an assignment. So write a brief history of physics using internet and also gather the information about classical and modern physics, and finally search more branches of physics other than your course. So my little thinkers, think about these and submit your assignments using media. Thank you.